कुछ नहीं सोच रहे। उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया है, उन्होंने सब बेच दिया, रास्ते बेच दिए। अभी ये बच्ची विद्युत ये भी बेचने का, उसका पैसा खाने का और लघु चक्कर हो जाने का, दूसरा इनका कुछ नहीं। ये हिटलर है। आज ये जो हमारे बांधव खड़े सब, उन्होंने 60 साल 70 साल ये महावितरण सेवकी लोगों को लाइट की सुविधा देने के लिए मेहनत की है। आज बेचारे रिटायरमेंट को आए और ये लोग आदमी को लाके उनको घर हकारना चाहते। We are protesting against smart meters because they are totally anti-worker, anti-people, anti-national, you can say, or anti-social. And the only aim of smart meters is to rob the people and to enrich the capitalists who are interested in the smart meters. महाराष्ट्र में चोर Central government has decided to install 25 crore smart electricity prepaid meters all across the country by 2025. This has triggered a lot of debate among the consumers as well as the power supply workers. However, the central government claims that this installation of the smart meters will bring quality, reliability and affordability in the power supply sectors. Some consumers feel that they will get benefit from the smart meters, whereas some feel that it is part of the privatization bid in the distribution sector. The smart electricity prepaid meter is a digital device that can record the energy consumption data in real time and can communicate it to the consumers as well as the electricity suppliers. So they can act as a two-way communication between the two. The power supply can get automatically disconnected if the prepaid amount is exhausted. One such protest erupted in Thane's Waghai estate outside the Mahavitaran office on January 7, 2025. Let's understand what these protesters were protesting for and what are their concerns. Compulsion of setting prepaid smart meters. It is not in the interest of workers. It is not in the interest of customers who could be using it. And under the guise of repairing meters, new installations, this is all being done. And we say that this is being done for the benefit of very few crony capitalists. The prominent amongst them is of course Gautam Adani, who has been indicted in New York court. 3 cases have been clubbed together. The people will be looted and they would not be able to raise their voice once these meters are everywhere they are put in place. The bills generating out of these meters are irrational, rampant, and they are giving hefty amounts. They are showing hefty amounts by way of bills which people wouldn't be able to pay. Well, I am a customer of MSCB, Electricity Board customer, and we all customer as whole are opposed to the prepaid meter sort of, because most of the customers are in the common working class or even middle class. They go in the morning for the work and then come in the evening. They are not so computer savvy to pay online and everything. So for that game, if a communication of bill, whatever his bills is not communicated, and all of a sudden if it is the light is disconnected, light is very essential as the water. Without electricity, the people cannot survive. That will be very hardships. To improve efficiency, it should be in the service, not in the getting the prepaids and sort of a monopolistic and capitalistic views. ये मीटर आने के बाद में पहले बात तो कर्मचारी का छोड़ो, लेकिन जनते का जो बिल है ये चैन की वस्तु हो जाएगी। जैसा कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, वो जैसा मोबाइल में अपन बिल डालता है, पैसा भरता है, बाद में उसका यूज करता है, बाद में वो पैसा खत्म होने के बाद में कट हो जाएगा। वैसे इसमें प्रावधान है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बाद में। वो बोल रहे हैं कि इससे अपने को बिजली कितना खर्चा करना है ये जनते को मालूम होगा, लेकिन ये झूठ है। इसमें अगर आपने 200 रुपये का बिजली का बिल डाला तो वो कितने दिन में खर्च होगा, कोई कितना यूनिट का दर लगाएगा, ये उसमें मालूमात नहीं है उसमें। और ये भी मालूमात नहीं है
कि ये इसका दर क्या रेट से लगाया, और उसमें वो भी प्रावधान है जैसा तुम ज़्यादा भी अगर उसमें खर्च करेंगे तो उसका ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन कौन से हिसाब से पे करना पड़ेगा ये भी नहीं है। उसके बाद में ये जो मीटर का जो कॉस्ट है, ये मीटर का कॉस्ट 12,000 रुपये पर मीटर है। अगर ये कॉस्ट अगर ये बोल रहे कि ये कॉस्ट ग्राहक को नहीं भरेंगे, लेकिन ये कैसा वसूल किया जाएगा वो पैसा आपसे कौन, उसमें वो बिजली में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ठाणे जिला की तरफ से भी हमने पूरा समर्थन इसको दिया है। एक्चुअली हम यहाँ पे आए हैं कि जो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर का जो इश्यू लेके हमने पिछले 4 महीना पहले पूरे महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया था मुंबई में। तभी देवेंद्र फडणवीस जी ने ट्वीट करके बताया था कि हम सामान्य जनता के घर पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। फिर भी सरकार में आने के बाद ये सरकार फिर से दोबारा गद्दारी कर रही है, और गद्दारी करके फिर से जनता के लिए खराब हुआ मीटर का बहाना बनाकर ये लोग प्रीपेड मीटर बना रहे। ये प्रीपेड मीटर ना कि धोखादायक एम्प्लॉय के लिए है, इतना ही धोखादायक उतना पब्लिक के लिए है। आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो गरीब जनता महाराष्ट्र में रहती है। एक बंदे को अगर आप एमएससीबी में अगर वो बंदा मीटर इस्तेमाल करता है तो वहां पे वो 2 महीना बिल हो गया, 3 महीना हो गया, तो वहां पे एमएससीबी उनको एडजस्ट, क्योंकि उनका कभी भी पगार होता है 10 तारीख को होता है, 20 तारीख को होता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर स्मार्ट मीटर आता है, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपका 5 मिनट में बिजली खत्म हो जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं, एक घर में 3-3 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई ध्वस्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर वो लाइट बिल अगर आपको 3 बजे कट गया या 4 बजे कट गया, कुछ खाना खाने कुछ होता है, तकलीफ किसी को नुकसान बड़ा होता है, महिलाओं को नुकसान होता है, क्या इसकी जिम्मेदारी ये सरकार ले सकती है? जब तक मीटर पूरा 2 करोड़ मीटर अडानी के नाम के मीटर लगने वाले महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, तो जब तक उनका डब्बे का मीटर डब्बे में जाता नहीं है, डस्टबिन में, तब तक हमारा वो रहेगा। एक तो हमने तो डिमांड की है अभी के राज्य सरकार के पास, देवेंद्र जी के सरकार के पास, जब तक एक जीआर निकालो कॉमन पर्सन के घर पे, जो घर पे जितने घर से उन पे जब तक स्मार्ट मीटर लगेगा नहीं तब तक हम प्रोटेस्ट करें। एक ही हमें चाहिए, जीआर चाहिए, स्मार्ट मीटर लगेगा नहीं। जैसे हमें मालूम है कि किसानों या गरीब जो लोग हैं, क्या वो आज भी वो मोबाइल बराबर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो प्रीपेड जो मीटर है उन्हें हमें रिचार्ज करना होगा। क्या गरीब लोग या जिन्हें मोबाइल ऑपरेट नहीं करना आता, क्या वो कर सकते हैं? अगर रात को अगर समझो अगर आप कहीं बाहर हो और आपके घर वाले घर पे हैं और उन्हें अगर वो रिचार्ज करना है, रिचार्ज खत्म हुआ, वो कैसे करेंगे? मतलब रात को उनको अंधेरे में ही रात गुजारनी है अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्रकार। और जो किसान है वो कैसे ये करेंगे? वहां पे बराबर टावर नहीं होता है, रेंज नहीं होती है, तो वो कैसे वो रिचार्ज करके उनके भरोसे, मतलब उनको आज किसान आज रीढ़ की हड्डी है देश की, और वो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ना चाहते हैं। और जो कर्मचारी लोग हैं एमएससीबी के, उन्हें रास्ते पे लाना चाहते हैं। The state-owned MSEDCL or the Mahavitaran caters to 2.8 crore consumers in Thane, Navi Mumbai, Kalyan, Vasai Virar and rest of the Maharashtra. The Mahavitaran officials state that smart meters will help address consumer grievances over billing, as they will get round-the-clock data about consumption through a mobile app. This will also improve collection efficiency and help in reducing consumer losses. However, the protesters say that this is only going to help the crony capitalists and not the genuine customers. They say that the state government should issue a GR in which they are promising that they will scrap this project. Now it will be interesting to see what are the further developments. This is Nirmiti Patoe reporting for Lokmat Times. Thank you.